Hello dear learners. Today we are going to discuss RPSC second grade English literature part. In that literature part we are going to discuss the poetry section. In that poetry section we have total number of 15 poems and we will discuss all these poems one by one. Here I am going to give you the brief introduction of poem and the most probable question that can be asked in your next RPSC examination. So today we are going to talk about the poetry of John Milton. So first of all, we are going to understand the basic concepts, basic theory, lifespan of John Milton. मेरे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं जॉन मिल्टन के बारे में जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर की सिलेबस की पोएट्री सेक्शन में इनकी पोएम है ऑन हिज 23rd बर्थडे और ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। इस पोएम को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ स्पैन ऑफ जॉन मिल्टन। ही वाज बोर्न इन 1608 and died in 1674. He was a major poet of Puritan age. His major belief was in the divine providence, or we can say that he obeys or follows the will of the God. If we talk about this particular poem, first of all, I am going to read the entire text of the poem, then we are going to discuss the basic key points of this poem. So if we talk about the text of this poem, the poem is a sonnet, and as we all know that sonnet has 14 lines. It is a Miltonic sonnet or a Petrarchan sonnet that has been divided into two major stanzas. First one is of 8 lines, second one is of 6 lines. 8 lines are known as the octave, the remaining 6 lines are known as sustained. And there is a shift after 8 lines and next for the next 9 lines. That shift or turn is called the volta, where the thought process of Milton has been shifted from the doubt or self-anxiety state to the belief or the God. So this is the sonnet. This is called a Petrarchan sonnet. This is also called a reflective sonnet, or we can also call this a autobiographical sonnet because Milton was talking about his age when he has arrived at the age of 23. The sonnet has two parts. The rhyming scale is A, B, B, A, B, B, A is of the octave, and C, D, E, C, D, E is the rhyming scheme of the last 6 lines, that is sustained. The meter of sonnet is always iambic. पेंटामीटर में इसको बात की गई है, iambic पेंटामीटर में बात की गई है। अगर हम इसकी और अलग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की बात करें कि पोएम कब लिखी गई थी, तो मिल्टन ने इस पोएम को लिखा 1631 और 1632 when he came to his father's house in Hammersmith. अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को खत्म कर मिल्टन जब अपने फादर के कंट्री होम हैमरस्मिथ में आता है 1631 और 1632 में, तो उस सेल्फ स्टडी के पीरियड के दौरान मिल्टन ने पोएम लिखी थी। पब्लिश की बात करें, वो पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1645 इन हिज पोएट्री कलेक्शन पोएम्स बाय मिस्टर मिल्टन। इस कलेक्शन में टोटल 15 पोएम्स पब्लिश हुई थी, 10 इंग्लिश एंड 5 लैटिन। So if we talk about the key points, the poem on his having arrived at his 23rd birthday, on his 23rd birthday, also called the title, written by John Milton. Lifespan of John Milton is 1608 to 1674. This is a sonnet. This sonnet has 14 lines. This sonnet is also called Petrarchan sonnet, Miltonic sonnet, डिवोशनल सोनेट और सेल्फ रिफ्लेक्टिव सोनेट। सोनेट में दो पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट 8 लाइन का है जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं, लास्ट की जो 6 लाइन्स है उसको हम सस्टेन्ड कहते हैं।
पोएम 1631 1632 के सेल्फ स्टडी पीरियड में हैमर स्मिथ ने अपने फादर के होम पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो मिल्टन आता तब लिखी गई थी। पोएम पब्लिश होती 1645 में। उसके पोएट्री कलेक्शन पोएम्स बाय मिस्टर जॉन मिल्टन में पब्लिश हुई। राइमिंग स्कीम की बात हम करें तो फर्स्ट ऑक्टेव का राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए और लास्ट सस्टेन का राइमिंग स्कीम है सी डी ई। ऑक्टेव में मिल्टन कोई प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं और सस्टेन में उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात की जाती है। सो मिल्टन यहाँ पर अपनी इनवर्ड राइपनेस लेट मैच्योरिटी की बात करते हैं। वो एक प्रॉब्लम है जहाँ पर एंजाइटी है और लास्ट में इस प्रॉब्लम का मिल्टन के द्वारा सॉल्यूशन बताया जाता है कि ऑल दिस डिपेंड ऑन द विल ऑफ द गॉड। डिवाइन टू प्रोविडेंस है, द विल ऑफ गॉड है, विल ऑफ द हेवन है, जहां मुझे लेकर जाएगी वो मुझे मंजूर है। इस तरह की बात जॉन मिल्टन इस पोएट्री सेक्शन में करते हैं। अब हम पोएट्री के लाइंस को देखते हैं और वन बाय वन इन पर बात करने की कोशिश करते हैं। हाउ सून हैज टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग बाय 3 and 20th ईयर। फर्स्ट टू लाइन में ऑक्टेव के इस पार्ट में जॉन मिल्टन बात कर रहे हैं कि हाउ सून टाइम हियर हैज बीन पर्सोनिफाइड द सटल थीफ ऑफ यूथ। तो फर्स्ट लाइन में द टाइम हैज बीन पर्सोनिफाइड एंड मिल्टन कॉल्स इट द सटल थीफ ऑफ हिज यूथ एंड ऑल्सो सेज दैट हिज this time has stolen his youth on his wing and he has reached to the age of 23 years। इन दो लाइनों में मिल्टन के द्वारा ये बताया जाता है कि टाइम कितना जल्दी मेरे इस यूथ को लेकर चला गया है और मैं अपने लाइफ के 23rd ईयर में पहुंच गया हूँ। यहीं से हमें पता चलता है कि मिल्टन की जो पोएम है इसमें उसके 23rd बर्थडे या 23rd ईयर के होने की बात की जाती है। माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर। हेस्टिंग डेज का यहाँ पर रेफरेंस है रैपिड डेज, जो मेरे फुल ऑन करियर पे चल रहे थे वो दिन कितने फास्टली बीत रहे हैं, गुजर रहे हैं। बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लूसम शोज। लेकिन लेट राइपनिंग की बात करते हैं, लेट स्प्रिंग की बात करते हैं। यहाँ पर लेट में मेटाफर यूज किया गया और लेट का मतलब होता है रिसेंट। वो उसमें कोई बर्ड या ब्लूसम शो नहीं होती, मतलब मेरी इनवर्ड राइपनेस नहीं आ रही है। Perhaps my semblance that means appearance might deceive the tree। मिल्टन कहते हैं कि मैं शरीर से बड़ा हो चुका, मेरी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बड़ी हो चुकी है, मेरी दाढ़ी मूंछ सब आ चुकी है, शरीर से मैं आपको बड़ा लग रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर इनवर्ड मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई। That I to manhood am arrived so near, कि मैं इस अपनी यूथ एज से सीधा मैनहुड पर इतना जल्दी आ चुका हूँ। एंड इनवर्ड राइपनेस डज मच लेस अपीयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और यहीं पर इस पोएम की मेन प्रॉब्लम भी बताई जाती है कि मिल्टन यहाँ पर कहते हैं कि मेरी इनवर्ड राइपनेस, इंटरनल जो मैच्योरिटी है वो अभी तक इतनी ज़्यादा अपीयरेंस में नहीं आई, इतनी ज़्यादा आई नहीं। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स एंड्योर्स, कि किसी में जल्दी आ जाती है, किसी में लेट आती है, लेकिन मेरे पास स्पिरिट अभी तक नहीं है। यहाँ पे ऑक्टेव थी। अब सस्टेट की बात करते हैं हम। यहाँ पर मिल्टन के द्वारा पोएट्री का सॉल्यूशन बताया जाए। Yet be it less or more, soon or soon, that पिछले लाइन से कनेक्टेड है, इट दैट से कनेक्टेड है और दैट इज टॉकिंग अबाउट द इनवर्ड राइपनेस। इनवर्ड राइपनेस की बात करते हैं। बी इट लेस और मोर, कम आए या ज्यादा, सुन और सुन, जल्दी आए या धीरे आए, इट शेल बी स्टिल इन द स्ट्रिक्ट मेजर्स एवन टू दैट सम लॉट मीन्स डेस्टिनी। हाउ आर मीन और लो, कि मेरी किस्मत में चाहे ये जल्दी आ जाए, चाहे धीरे आए, चाहे कम आए, चाहे ज्यादा आए, लेकिन मेरी जो भाग्य में होगा, किस्मत में होगा, वो आ ही जाएगी। टूवर्ड्स विच टाइम लीड्स मी, और इस डायरेक्शन में मुझे लेकर जाने का काम कौन करेगा? टाइम लीड्स मी। टाइम विल टेक मी टू दैट इनवर्ड राइपनेस। और एक और बात जो यहाँ पर की जाती है, द विल ऑफ द हेवन, द विल ऑफ हेवन। इट मीन्स टू से दैट कि इस पोएम में मिल्टन की इनवर्ड राइपनेस में दो चीजें उसको लेकर जाएंगे, एक तो टाइम है और एक है विल ऑफ हेवन। जो भी विल ऑफ हेवन होगा, विल ऑफ हेवन मीन्स द विल ऑफ गॉड की जो इच्छा होगी, यानी ईश्वर की जो इच्छा होगी वो हो जाएगा, उस डायरेक्शन में टाइम लेकर जाएगा।
All is as if I have grace to use its. बस भगवान मुझ पर इतनी कृपा करे कि मैं जो इनवर्ट राइटनेस मुझे जब भी मिलेगी मैं इसका प्रॉपर तरीके से यूज कर सकूं। इतनी कृपा दृष्टि ईश्वर की बनी रहे। एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आइज, जैसा कि मेरे ग्रेट टास्क मास्टर की आइज में हो। ग्रेट टास्क मास्टर यहाँ पर मिल्टन ने वर्ड यूज किया है गॉड की नजर में। तो इस पोएम की अगर हम बेसिक की पॉइंट की बात करें कि लाइन थ्योरेटिकल लाइन से क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो पहला लाइन जो हम देखते हैं तो टाइम का पर्सोनिफिकेशन किया गया और टाइम के लिए वर्ड यूज किया गया सेटल थीम ऑफ यूथ। सेकंड बात हम करें, दूसरी बात हम करें तो यहाँ पर मिल्टन जो है वो अपने 23rd ईयर में पहुंच चुका था। उसके हेस्टिंग डेज का मतलब होता है रैपिड डेज, बहुत ग्रोथ पर चल रहे थे। मिल्टन कहता है कि लेट स्प्रिंग, जो ये रिसेंटली स्प्रिंग का सीजन है, ये मेरे अंदर कोई बर्ड या ब्लॉसम शो नहीं करता, इंपॉर्टेंट बात है। और वो कहता है कि मैं इस यूथ एज से मैनहुड के नजदीक बहुत जल्दी पहुंच चुका। मेन इंपॉर्टेंट अगर इसमें इशू की बात की जाए कि मिल्टन किसके बारे में कंप्लेन कर रहा था, तो मिल्टन वाज कंप्लेनिंग अबाउट हिज इनवर्ट राइटनेस, कि मेरे अंदर अभी तक इनवर्ट राइटनेस नहीं आया। कैसे बात करता है कि कम आ जाए, जल्दी आ जाए, बहुत लेस मात्रा में हो, मोर मात्रा में हो, लेकिन जितनी भी मेरी किस्मत में होगी आ जाएगी। और उसकी तरफ मुझे ले जाने वाले दो चीज करेंगे, टाइम एंड द विल ऑफ द हैंड। और यहाँ पर गॉड के लिए उसने वर्ड यूज किया है मिल्टन ने टास्क मास्टर। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि टास्क मास्टर वर्ड किसके लिए यूज किया गया, वो गॉड के लिए यूज किया गया। ये बेसिकली कुछ बात थी जो हमने पोएम के बारे में की थी और यही हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल से जुड़े रहिए। अगली पोएट्री के लिए इसी तरह से हम ब्रीफ में वीडियो और ऑडियो सेक्शन के माध्यम से आपके कोर्स की मैक्सिमम पोएम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।